This is the second lecture related to class 10 physics electricity chapter. In today's lecture, we will discuss about the concept of resistance and resistivity, and we will also discuss about the combination of resistors and what is the use of combination of resistors, and at last we will discuss about the concept of electric power. Just see, very important discussion in today's lecture. This is second lecture, and in this lecture we will discuss mainly about relationship between resistance and resistivity. Relationship between resistance and resistivity. Easy concept about resistance and resistivity. Just listen. Experimentally, it is found that resistance of a conductor depends upon following two factors. Number one, length of the conductor, and number two, that is cross section area. Cross section area means this part. This is the circular part, and this part. Suppose a wire having cylindrical in shape, so this part will be what? The cross section area. Just see, resistance of wire. Resistance of wire depends upon following two conditions. Number one, resistance directly proportional to length of the conductor, and number two, resistance inversely proportional to area of cross section. It means whenever length increases, their resistance must be increased, and when area increases, the resistance decreases. Clear? Just see, combining these two. Combining these two concepts, we have R proportional L upon A. R, in simple way, we say that R is equal to rho L upon A, where rho is the resistivity, where rho is the resistivity, its unit is ohm meter, because resistance unit ohm and area multiplied means what? Meter square unit, then dividing by length unit meter, so area meter is square whenever multiplying ohm. Just like see, rho is equal to what? RA by L, so unit ohm meter square upon meter, then meter cancel, then will be what? Equal to ohm meter. Just like this one. Clear? So resistivity unit, very simple. And one important thing, when
here is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter square. Then R is equal to rho. R is equal to rho. Listen about the concept. When 1 meter length of conductor having cross section area also 1 meter square, then the resistance of the conductor is numerically equal to resistivity. Listen again. Resistivity means what? That is numerically equal to resistance of the conductor when 1 meter length of conductor having cross section area 1 meter square. Clear? So that's all, very easy. Just note down this, and after this we will discuss about the combination of resistors. Just note down this one. Just after the concept of resistance and resistivity, the next concept is what? Combination of resistors. Combination of resistors. बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि रेसिस्टर्स कभी कभी कहा जाता है, कभी कभी रेजिस्टेंस कह दिया जाता है. तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. रेसिस्टर्स मीन्स डिवाइसेस. जो रेसिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? डिवाइस होते हैं, और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. क्लियर? तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में 2 टाइप्स that is given in your syllabus. One series combination and other parallel combination. So first, number 1 series and number 2 parallel. इन दोनों में हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे. अब फार्मूला क्या है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इजियर वे है. किसी भी न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाइड सॉल्व करना है तो फार्मूला कॉन्सेप्ट कंपलसरी. सो लेट्स सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको इनटू 1 into other in. वन इंटू अदर इंड. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है. जब 1 2 से कनेक्ट हो या 2 1 से कनेक्ट हो, इन दोनों कॉम्बिनेशंस में से कोई भी अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन. देखिए ये रेसिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, ये एक रेसिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? R3. क्लियर? 3 रेसिस्टर्स. देखिए इसका अगर इस पॉइंट को मार रहे हैं 1, इसको मार रहे हैं क्या? 2. तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट साइड 2, इसका लेफ्ट साइड 1. क्लियर? अगर लेफ्ट साइड को हम 1 मान रहे हैं और राइट साइड को 2 मान रहे हैं, ठीक, तो हर जगह देखिए 1 2 से कनेक्ट है, या कह सकते हैं 2 1 से कनेक्ट है. whenever 1 connected with 2 or 2 connected with 1, then there is a series combination. यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं? सेल से कनेक्ट कर दे रहे हैं. सेल से कनेक्ट करने के बाद एक स्विच एडजस्ट कर दे रहे हैं. इसको हम क्या कर रहे हैं? फाइनली कनेक्शन को कंप्लीट कर दे रहे हैं. क्लियर? अब यहाँ क्या होगा? करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. क्लियर? एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी करंट फ्लो हो
तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। और इन सीरीज में रेजिस्टेंस का जब भी कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट रखते हैं 1 2 से 2 1 से। इसके बाद सीरीज में जो वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल। मान लो V1 रेसिस्टर, जो R1 रेसिस्टर है V1 पोटेंशियल पे है, R2 रेसिस्टर V2 पोटेंशियल पे है, और एट लास्ट R3 रेसिस्टर V3 पोटेंशियल पे है। क्लियर? तो सारे रेसिस्टर्स डिफरेंट पोटेंशियल पे क्या कर रहे हैं, वर्किंग में है। इनका जो कॉम्बिनेशन होगा रिजल्टेंट पोटेंशियल वो क्या होगा, V होगा। ये K है क्या, की। क्लियर? ये हो गया सर्किट डायग्राम। अब इस सर्किट डायग्राम में हमको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन का। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसमें केवल एक सिंगल रेसिस्टर होगा, जिसको हम लोग बताएंगे क्या, R मीन्स रेसिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R, yes for सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल से कनेक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस से रहेंगे। करंट क्या फ्लो होगा, I टोटल पोटेंशियल कितना होगा इसका, V। क्लियर? तीन दोनों डायग्राम के हेल्प से हम लोग डेरिवेशन करेंगे। इसमें देखिए जो भी वैल्यू क्या डिफरेंट है, रेसिस्टर्स को छोड़ के, रेसिस्टर तो 3 है तो डिफरेंट रहेंगे, इससे हो रहे। सीरीज में पोटेंशियल ऑलवेज विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेसिस्टर्स V1 V2 V3। जो वैल्यू डिफरेंट है उसी के बेस पे डेरिवेशन होगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। द वैल्यू दैट इज डिफर, दैट इज द बेस फॉर डेरिवेशन ऑफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। देखिए बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू I R। सर्किट डायग्राम फर्स्ट, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3. Clear? Then when all the three resistors replaced by a single resistor RS having resistance, then V is equal to what, IRS, and this V is equal to what, V1 plus V2 plus V3 is equal to IR, yes, and V1 value is equal to IR1 plus IR2 plus IR3 is equal to IR, yes। अब इसके बाद क्या करेंगे, I हर एक टर्म में कॉमन है, I कॉमन लेके यहाँ से I क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो उसके बाद रिजल्ट हमारा आ जाएगा, आफ्टर दिस स्टेप RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल डेरिवेशन है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बढ़ जाती है। और सिंपल डायग्राम है, डायग्राम में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जब भी 1 2 से कनेक्ट हो या 2 1 से कनेक्ट हो और सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि पथ फॉर फ्लोइंग करंट क्या है, कॉमन, सबके लिए एक ही पथ है, उसी पथ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। उसके बाद पोटेंशियल की वैल्यू सबके लिए क्या होती है, सबके लिए अलग अलग डिफरेंट होती है। फर्स्ट रेसिस्टर के लिए V1 पोटेंशियल, सेकंड के लिए V2, थर्ड के लिए V3। अगर इन तीनों रेसिस्टर्स को हम रिप्लेस करके एक सिंगल रेसिस्टर यूज करें, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, RS, तो सेम पोटेंशियल V पे उसको जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I होगा। तो हम V इक्वल टू क्या कर देंगे, IR, यस।
और V की वैल्यू किसकी इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद सारी वैल्यू पुट किया, I कॉमन लेके हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे चाहे जितने भी रेजिस्टर्स हम लोग यूज करें सबका सम हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, डेरिवेशन इजी डेरिवेशन है। जस्ट आफ्टर द सीरीज कॉम्बिनेशन द नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन इज व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वेरी इजी कॉम्बिनेशन। जस्ट सी व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। Parallel combination, when two or more resistors are connected in between two same points, it means the 2 points is fixed and a number of resistors are connected in between 2 points under condition one lies on another and second lies on another in this way, then in the form of stairs when they are connected, then there is a concept of parallel combination. Just see, when two or more resistors connected in between two same points, and how we have to sort out the combination is parallel or not. That is one connected with one or two connected with two. This is the shortcut confirmation concept. And here see the diagram. Here 3 resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel form. And current flowing through each having different I1, I2 and I3. Then completing the circuit, K potential V. Now see the diagram concept. When we replace all the resistors by a single resistor, and the concept of diagram, this one, easy concept of diagram. Current here I, potential V, here the total potential in this case will be same in separate form and combined form also, because the basic concept for derivation that the value is different. Here current, on behalf of current we will derive the formula. You see the concept, this is the key point, this is the potential point. I think everything is clear. If any doubt, then you can ask. Very easy concept, each and everything. The derivation concept here by Ohm's law. By Ohm's law, V is equal to what? IR, or I is equal to V upon R. Here, then current I1
I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3. When all the three resistors replaced by a single resistor whose resistance is equivalent to this, that is Rp. P here for parallel combination. Clear? Then I is equal to V upon Rp. Clear? And the value of I, that is equal to what? I1 plus I2 plus I3. So V upon Rp is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Clear? When we taken V common, then the result will be 1 upon Rp, taken V common and cancel out. Then we will get what? V will be common and cancel out from both sides. Then the result will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the result of equivalent resistance in two combination. Whenever two resistors are combined in parallel, then there is a shortcut formula. Just note down. I will say the simplified formula. 1 upon Rp is equal to, for two resistors, only. Whenever two resistors are used, then 1 upon Rp is equal to what? 1 upon R1 plus 1 upon R2 and 1 upon Rp, then R2 plus R1 upon R1 R2, or simply Rp is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. Clear? Whenever two resistors are given in parallel combination, then in short form, how the resistance can be calculated by using this formula. Product of the given two resistor, दोनों resistor का क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे और उनके सम से दोनों क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. जैसे मैं एक सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स. एक रेसिस्टर है 5 ओम का, दूसरा है क्या? दूसरा भी 5 ओम का है. दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किए गए हैं? R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to also 5 ohm, then Rp is equal to 5 5 is 25, 5 into 5 25 upon 5 plus 5 10, so 25 upon 10 is equal to 2.5 ohm. Clear? बहुत सिंपल सोल्यूशन है. Within seconds you can solve out the numericals. क्लियर? ऐसे ही अगर कॉम्बिनेशन गिवन हो कि 5 ओम के 3 रेसिस्टर्स अगर गिवन हो और हमको फाइंड आउट करना है कि कैसे कनेक्ट किया जाए कि रिजल्टेंट 7.5 आए. इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? 2 का सीरीज करेंगे तो 10 हो जाएगा. तो सीरीज 10 करेंगे 2 का रिजल्टेंट और फिर 10 का 5 के साथ पैरेलल करेंगे. 10 5 50 अपॉन 15, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, फिर सम से डिवाइड करना है. तो 10 अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन में आ रहा है, फिर बचा हुआ एक 5, तो 10 इंटू 5 50 अपॉन 10 प्लस 5 15. तो 50 अपॉन 15 करने पे 3 पॉइंट समथिंग आएगा. तो रिजल्ट सही नहीं है. मतलब 2 का पैरेलल देखें हम लोग तो 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 अभी निकाला हमने, कितना आया? 2.5 आया है. तो इस 2.5 को अगर हम लोग 5 में डायरेक्टली क्या कर दें? ऐड कर दें, तो ये श्योर है कि रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा कि 7.5 रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा व्हेन 2 are connected in parallel and 1 just connected in series. कैसे कनेक्टेड करेंगे पैरेलल में, कैसे कनेक्टेड करेंगे सीरीज में? देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये नोट कर लीजिए. इसके बाद देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग. इसमें न्यूमेरिकल बहुत ही पूछता है जी. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी तरह से पूछेगा, हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं? उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं. पैरेलल के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया है शॉर्ट में.
दो के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू अपॉन सम ऑफ टू। क्लियर? देखिए दो पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है, तो पैरेलल कनेक्ट कर दिया 5 ओम। अब ये क्या किया इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तो ये हमारा क्या रहेगा, आरपी यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5, तो 5 अपॉन 10 कितना हो गया 2.5। इन दोनों का रिजल्टेंट, जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकल जाएगा उसके बाद हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये आ गया आर, कितना आ गया, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे हम लोग 2.5 ओम। फिर बचा है कितना 5 ओम। अब इन दोनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट प्लस होता है। 2.5 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5 ओम। क्लियर? तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस पे बेस्ड अगर आएगा तो हम लोग उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इस रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस में जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं तो इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल्स अगर किसी कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा तो वो पूछ सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ये देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक बार अगर ध्यान से अपन सुन लेंगे तो हमेशा के लिए वो याद रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, इसमें फार्मूला थोड़ा ज्यादा है क्योंकि टोटल फार्मूले पे ही बेस्ड है। इलेक्ट्रिक पावर डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन सुनिए। जैसे नॉर्मली हम लोग पावर डिफाइन करते हैं तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कुछ भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है the time rate of electric work done, the time rate of electric work done by an electric appliance। किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जब कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क डन कौन करेगा, इलेक्ट्रिक अप्लायंस करेगा और विद इन टाइम करेगा, तो उसको टाइम रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पावर। फिर देखिए द टाइम रेट ऑफ electric work done the time rate of electric work done by an electric appliance is defined as electric power। क्लियर? डिफिनेशन इजी है और डिफिनेशन का कॉन्सेप्ट फार्मूले से है P इज इक्वल टू व्हाट, W अपॉन T। बट हम W जानते हैं क्या होता है, बट V is equal to W upon Q, so W is equal to QV, then P is equal to QV upon T। इसको हम लोग V Q upon T जब अरेंज करेंगे तो Q upon T क्या होता है, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट, तो VI आ गया। तो P is equal to VI, ये पावर का पहला फार्मूला है। ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है, IR एंड I इक्वल टू V अपॉन R। इन दोनों का यूटिलाइजेशन जैसे करेंगे इस फार्मूले में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐसे P की जगह IR रखेंगे V की जगह, तो IR इंटू I इज इक्वल टू I स्क्वायर R। क्लियर? फिर P इक्वल टू I की जगह V अपॉन R रखेंगे तो V इंटू V अपॉन R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर के दो और फार्मूले आ गए, एक P इक्वल टू I स्क्वायर R आ गया, एक P इक्वल टू
वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। क्लियर? ये दोनों फार्मूला पावर का और एक इनिशियल फार्मूला P इक्वल टू वी आई, इन तीनों फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स किसी भी तरह पूछे जा सकते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक पावर के बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉन्सेप्ट और भी इजी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉन्सेप्ट सुन लीजिए बस ध्यान से। इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक पावर की डिफिनेशन क्लियर है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के डेरिवेशंस और डिफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो पावर की डिफिनेशन है इसी में इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हुआ है, छुपा हुआ है। जो ये वर्क डन है, इसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। डिफरेंस सुनिए, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे या E से रिप्रेजेंट करेंगे, जो होगा किससे इक्वल, पावर इनटू टाइम के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट, E इज इक्वल टू P इंटू टी। अब E की वैल्यू कभी कभी इसको W से भी दिखा देते हैं, कभी कभी E से, कभी कभी H से। तो P की वैल्यू क्या है, वी आई टी, या E इज इक्वल टू स्टार्टिंग के बाद वी आई के बाद आई स्क्वायर आ है, आई स्क्वायर आर टी, या फिर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो वी आई टी से रिलेटेड, चाहे आई स्क्वायर आर टी से, चाहे इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी से। तो इन्हीं सब के रेफरेंस में जूल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो फार्मूला तो सेम डिराइव किया था, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बट उसको एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव किया था। क्या किया था, अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट है क्या, whenever current passes through wire for t time, whenever current passes through wire for t time at resistance R, then the heat developed in the wire, experimentally he observed that, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या पाया था कि जो हीट डेवलप हो रहा है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, और यही हीट रेजिस्टेंस के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के भी है। मतलब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो कह सकते हैं वायर जल्दी गर्म हो जाएगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस पे अगर फ्लो होगा तब भी वायर क्या होगा, जल्दी हीट हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम तक फ्लो होगा तब भी वायर क्या होगा, हीट हो जाएगा। तो इन तीनों को जब कंबाइन करते हैं हम लोग तो H क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिप्लेस करते हैं तो कांस्टेंट जो आता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये चीज इक्वल टू हो क्या जाता है, आई स्क्वायर आर टी। हीट है, इस हीट को हम लोग मेजर करेंगे इसमें जूल में, एनर्जी चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, ठीक, या हीट एनर्जी हो, इन सब को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जूल में, और इसको कैलोरी में चेंज करने के लिए एक फैक्टर होता है 4.18 या 4.2, उसी का हम लोग मल्टीप्लाई जब करते हैं तो एनर्जी जूल से किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैलोरी में। 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है जो डेरिवेशंस का, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का हो, चाहे इलेक्ट्रिक पावर का हो, या फिर जूल हीटिंग इफेक्ट का हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स हो, या फिर रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी हो, रिलेशनशिप, तो कोई भी कॉन्सेप्ट में किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको पूछिएगा, और प्लस कोशिश करिएगा हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।